اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ خاص طور سے خواتین میں بھی اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ اگر کوئی بڑھیا سینڈل پہن کے مسجد چلی آئے تو شاید وہ سینڈل پہن کے دوبارہ گھر نہ جا پائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یحلبن احدکم ماشیۃ احد الا باذنہ۔ تم چپل چرانے کی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی کسی جانور کے تھن میں سے بغیر پرمیشن کے دودھ نہ نکالے۔ گاؤں دیہات میں ہم نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کی بکری کھلی رہتی ہے، بکری دروازے کے پاس سے گزر رہی ہے، اے دو چھکڑیاں پکڑنا تھا تو وہ دودھ نکال۔ ارے کہے تمہارے باپ کی ہو بکری؟ ہاں، بغیر پرمیشن کے نبی فرماتے ہیں لا یحلبن احدکم ماشیۃ احد الا باذنہ۔ کسی جانور کا دودھ تھن میں سے کوئی بغیر پرمیشن کے نہ نکالے۔ ایحب احدکم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته۔ یہ جو تھن میں اللہ دودھ پیدا کرتا ہے نا جانور کے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کی مثال اسٹور روم سے آپ نے دی ہے، جہاں آپ اپنا سامان اسٹور کرتے ہو۔ تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ چپکے سے کوئی تمہارے اسٹور روم میں گھس جائے، ڈراور توڑ دے اور اس کے بعد کھانے پینے یا جو بھی سامان وہ نکال کے لے کے چلا جائے؟ ہے کوئی جو پسند کرے گا؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ہی یہ جو جانور کے تھن ہیں یہ اسٹور روم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دودھ کو اسٹور کرتا ہے۔ تو اگر کسی کا سامان لینا ہے اس کے اسٹور سے تو پہلے پرمیشن لے لو، پہلے پرمیشن لے لو۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یاخذن احدکم متاع احد لاعبا ولا جادا۔ تم میں سے کوئی کسی کا کوئی بھی سامان چھوٹا ہے یا بڑا بغیر پرمیشن کے نہ لے، مذاق میں بھی نہ لے، سیریسلی نہ لے۔ بہت سارے لوگ مذاق میں ایک دوسرے کا سامان چھپا لیتے ہیں، اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ کہے بھائی کوئی کسی کا سامان نہ لے، لاعبا ولا جادا، لہو لعب کے طور پہ، کھیل تماشے کے طور پہ، مذاق کے طور پہ، اور نہ ہی سیریسلی۔ اس حدیث کے ایک راوی سلیمان الدمشقی کہتے ہیں، سلیمان الدمشقی کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں لعبا ولا جدا، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی بھی بغیر پرمیشن کرنا، ڈنڈا، بہت سارے بزرگ مسجد میں آتے ہیں ڈنڈا لے کر کے مثال کے طور پہ، اب وہ ڈنڈا وہاں باہر انہوں نے کھڑا کر دیا، اب ڈنڈا لے کے کوئی رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا۔ کوئی کسی کی لاٹھی اور ڈنڈا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ لے، اس کو لوٹا دے۔ تو جو لوگ دوسروں کا سامان چرا لیتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ چوری اور ڈاکہ زنی ہماری شریعت میں کتنی معیوب چیز ہے اور کتنی وعیدیں آئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے حرام کمائی کی۔ حرام کمائی کی ایک شکل یہ بھی ہے مال کو غصب کرنا۔ غصب کی تعریف پہلے سمجھ لیجیے، کسی کا مال ناحق دبا لینا، بغیر آپ کا حق نہیں ہے لیکن آپ نے اس پہ یا تو قبضہ جما لیا یا اس کا مال ہڑپ کر لیا جبکہ آپ کا اس پہ حق نہیں ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما توبه یوم القیامت من سبع ارضین۔ ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کی دبا لی ہے، ظلم کے طور پہ ناحق لے لی ہے، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا ہار پہنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ بتاؤ میرے بھائیوں کہ 7 زمینوں کا ہار کتنا لمبا چوڑا ہوگا، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ ہار گلے میں لٹکا دیا جائے گا تو یہ بوجھ تم کیسے برداشت کرو گے؟ گاؤں دیہات میں خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ اتنے حریص ہوتے ہیں دولت کے، کھیتی باڑی کے، میڑ سمجھتے ہیں نا، میڑ، ایک کھیت اور دوسرے کھیت کے بیچ میں جو ڈیوائیڈر ہوتا، میڑ ہوتی،
छांटते रहते, काटते रहते, और कितने लोग तो पता चला कुछ दिनों के बाद मेढ़ गायब, और मेढ़ यहाँ थी तो वहां चली गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लानत हो ऐसे शख्स पर, मन गय्यर मनाल अर्ज़, जो जमीन के निशानात को बदल देता है। लानत आई है ऐसे लोगों पर। हाल यह है नाली नाबदान लोग कब्जा कर लेते हैं, गटर नाली के लिए रास्ते नहीं देते, दीवार बढ़ा के उठा लिए, पता चला रास्ते गायब। गांव देहात में ज्यादा ही होता है। ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए हैं गांव में कि जहां से बैलगाड़ी गुजरती थी किसी जमाने में, बाप दादाओं के जमाने में हमने देखा गांव में इतने रास्ते होते थे एक घर और दूसरे घर के बीच में, आराम से दुल्हन बैलगाड़ी पे बैठ के घर के दुआरे पे आके उतरती थी। आज वहां बमुश्किल एक मोटरसाइकिल या साइकिल, 4 पहिया गाड़ी नहीं गुजर सकती। लोगों ने बढ़ा के वो जमीन हड़प करके, और अरे एक बालिश दे, एक हाथ में आप क्या बन जाओगे मुझे बताओ, आप क्या आपका बन जाएगा, क्या भला हो जाएगा। आज हालत यह है कि जनाजे के लिए खाट भी कसम खुदा की बाज गलियों से आप नहीं निकाल सकते, अपने मुर्दों को आप जो है खाट पे लेकर के नहीं जा सकते। ये हाल, लोग एक दूसरों की प्रॉपर्टियों पे, जमीनों पे, जायदाद पे लोग कब्जे जमा लेते हैं। अब तो हालत ये है जमीन खरीदो फौरन बाउंड्री खिंचाओ, हो गया जमाना। जब लोग जमीन खरीद करके यूं ही छोड़ दिया करते थे, कुछ दिन के बाद आओगे आप, जमीन खरीद के छोड़ के चले गए कमाने देश परदेश, चंद सालों के बाद वहां दूसरे का मकान आपको बनकर तैयार मिलेगा। ये मेरा काम मैंने अपनी आंखों से देखा, कितने लोगों के साथ ये हादसे हो चुके हैं। इस कदर हमने देखा है वकीलों की पूरी गैंग चलती है जो कमजोर लोगों को तलाशते हैं, जो बेचारे जरा कच्चे होते हैं, कमजोर होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट जरा कच्चे होते हैं, उस पे धावा बोलकर वकील जो कोर्ट में वकालत करते हैं। लखनऊ में मैंने देखा 200 वकीलों की गैंग चलती है। बाकायदा देखा कोई जमीन आदमी गायब है, कुछ दिनों से उस पर कब्जा जमा लिया। गांव देहात में भी ऐसा बहुत होता है। फिर भाई बहुत प्यारा वाकया, जमीन गसब कर लेना, लोगों ने इसको मामूली समझ रखा है। नबी के ज़माने में या मरवान बिन हकम के ज़माने में एक वाक़या मदीने में हुआ। अरवा बिन्त उवैस नामी एक औरत ने हज़रत सईद इब्न ज़ैद पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनकी थोड़ी सी ज़मीन गसब कर ली है। मामला मरवान बिन हकम के पास पहुंचता है। मरवान बुलाते हैं हज़रत सईद बिन ज़ैद को कि भाई तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि तुमने अरवा नामी औरत की ज़मीन गसब कर ली है, कोई है दलील तुम्हारे पास कि तुम बरी उस जिम्मा हो? हजरत सईद इब्न ज़ैद ने कहा वो खलीफे वक्त, हाकिम वक्त, मेरे पास दलील तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैंने अपने इन्हीं कानों से रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, मन ज़लमा मन नखज़ शिब्रम मिनल अर्दि ज़ुल्मा, जिसने किसी की जमीन एक बालिश जुल्म के तौर पे नाहक हथिया लिया, तो वह यौमल क़ियामत मिन सबे अर्ज़ीन, 7 जमीनों का तौक उसके गले में पहना के डाला जाएगा। मुझे बताइए ये हदीस सुनने के बाद भाई क्या मैं ये जुर्अत करूंगा कि किसी की जमीन पे नाहक कब्जा करूं? मरवान ने कहा इसके बाद मैं आपसे कोई दलील नहीं मांगूंगा। हजरत सईद इब्न ज़ैद ने अपने हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा आमी बसरहा, ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैं बरी हूँ, ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ, ये औरत मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, मेरा दामन दागदार कर रही है। एक ऐसा सहाबी जो अशरा मुबश्शिरीन बिल जन्ना है, ऐसे सहाबी का दामन दागदार किया जा रहा था। बताइए कि उसका दिल खून के आंसू रोएगा कि नहीं? हजरत सईद ने फजा में हाथ उठाए, कहा अल्लाह अगर मैं बेगुनाह हूँ, अल्लाहुम्मा आमी बसरहा, ऐ अल्लाह तू इस औरत की बीनाई छीन ले, ऐ अल्लाह इसको अंधा बना दे, वजअल कब्रहा फी बैतिहा, और अल्लाह इसकी कब्र तू इसके घर में ही बना दे। चंद दिन गुजरे थे, लोगों ने देखा, मदीने वालों ने देखा कि उस औरत की बीनाई चली गई, लाठी के सहारे वो टटोल कर चलने लगी, और उसके बाद जोर की बारिश होती है। उसके घर के सामने कुआं था,
पानी इतना भर जाता है उसको पता नहीं चलता, टटोलते टटोलते उसी कुएं में जाके गिरकर मर जाती है। पूरे मदीने में आवाज फैल गई, असाबत दावत सईद, शहीद इब्ने ज़ैद की बद्दुआ इस औरत को लगी है। इसलिए मेरे भाइयों, कभी किसी मजलूम की बद्दुआ नहीं लेना। किसी की जमीन जायदाद, किसी की प्रॉपर्टी तुम दबा लोगे, वो रात में उठ के रोएगा, वो सजदे में गिर के तुम्हारे लिए बद्दुआएं करेगा, वो अल्लाह के सामने हाथ उठा के अगर गिड़गिड़ाएगा। मजलूम कोई भी हो, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। दावतुल मजलूम मुस्तजाबा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मजलूम कोई भी हो, काफिर भी हो, फासिक भी हो, बेदीन हो, जरूरी नहीं है कि वो दीनदार होगा तभी उसकी बद्दुआ कबूल होगी। वो फासिक है, फाजिर है, बेदीन है, अगर उसके ऊपर जुल्म हुआ है और वो हाथ उठा के बद्दुआ करेगा तो मेरे भाइयों याद रखो उसकी ये बद्दुआ आसमानों को चीरते हुए अर्श इलाही तक पहुंचेगी। आज लोग दीन ईमान अकीदा सब बेच डालते हैं चंद टकों के लिए, पैसों के लिए। तो एक चीज ये भी है कि गसब जो है किसी का माल नाहक नहीं लेना चाहिए, नाहक किसी के माल पे, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करना चाहिए। हराम कमाई की एक शक्ल है खयानत। खयानत का लफ्ज जब आता है तो आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि किसी ने किसी के पास कोई अमानत रखी है, कुछ रुपया पैसा रखा है तो उसमें खयानत न की जाए। यकीनन ये इसका पहला माना यही जहन में आता है और अमानत की बड़ी ताकीद आई कि भाई कोई अगर आपके पास कोई अमानत रख रहा है, कुछ सामान रख रहा है, कोई रुपया पैसा रख रहा है, तो जैसे उसने रखा उसकी अमानत वैसे ही आप रखे रहिए, जब वो मांगे तो आप उसके हवाले कर दे। अगरचे अमानत का दायरा बड़ा वसी है, अमानत तो ये भी है कोई दोस्त अगर आपसे कोई राज की बात बता रहा है तो आप उसको अपने सीने में महफूज रखिए, ये भी अमानत है, ये भी अमानत है। अगर उसके राज को आपने ओपन कर दिया, किसी ने आपको अपना समझ के अपना राज बता दिया और आपने उसके राज को ओपन कर दिया, ये भी खयानत है। ऐसे ही कोई प्राइवेट मजलिस है, कोई मीटिंग चल रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई ये प्राइवेसी है कि यहाँ जो बात हो रही है बाहर लीक ना होने पाए, तो बाहर निकलने के बाद भी उस बात को आप अपने सीने में रखिए। इसलिए कि नबी फरमाते इन्नल मजालिस अमाना, मजलिसों में जो खास मजलिसों में बातें होती हैं वो अमानत है। तो मैं माल की अमानत के हवाले से आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। आज खयानत इस कदर हमारे मुआशरे में आम हो चुकी, कसम अल्लाह की आप जायजा लीजिए, 4-6 लाख रुपया किसी के पास रख दीजिए और महीना 2 महीना बाद मांगने आइए भैया मेरी अमानत दे दीजिए, पता चला कहेगा क्या, वो तो हम धंधे में लगा दिए। 90% लोगों का जवाब यही मिलेगा, हमने तो धंधे में लगा दिया लेकिन दे देंगे। अरे भैया कहूँ भागा जाए था, अरे बेईमान समझे हो मैंने। यही अमानत का मतलब है कि आप उसको धंधे में लगा लो, बिजनेस में लगा लो, खर्च कर लो। अरे वो अमानत थी, जिस तरह हमारे नबी को लोग सादिक अमीन कहा करते थे, नबूवत से पहले भी लोग अपनी अमानतें लाके हमारे नबी के पास रखा करते थे। और जब आप मक्के से मदीने हिजरत कर रहे थे, हजरत अली को अपने बिस्तर पे लेटाया था, ये कहा था कि जिन लोगों की अमानतें मेरे पास है अली, वो अमानतें तुम लोगों के हवाले कर देना, फिर तुम मदीने आना। यह है अमानत। और खयानत दुनिया के मामले में अगर आदमी कर रहा है, बिजनेस धंधा मार्केट में कर रहा है, खयानत कर लिया, अपने पार्टनर का हक दबा लिया। आमतौर पे जो पार्टनर होते हैं ना, बिजनेस पार्टनर, वो ज्यादा गड़बड़ करते हैं। और एक रिवायत में अगरचे उसकी सनद ज़ईफ है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अना सालिसुश शरीकैन, 2 आदमी अगर पार्टनर हैं तो मैं उनका तीसरा मैं होता हूँ, जब तक एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के साथ खयानत नहीं करता है। और जब पार्टनर के साथ खयानत करने लगता है, बीच में से मैं निकल जाता हूँ। पार्टनर अक्सर गड़बड़ करते हैं, सही हिसाब नहीं देते, माल दबा लेते, या प्रॉफिट कितना हुआ पार्टनर का बराबर हिस्सा था
اس کو دبا لیا، اس کو صحیح حساب نہیں دیا، صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کیا. میرے بھائیوں یہ سب خیانت کی شکلیں ہیں. لیکن سب سے بری خیانت میں سمجھتا ہوں کہ اگر دین کے نام پہ اگر کوئی کرے، مسجد کے نام پہ کرے، مدرسے کے نام پہ کرے، یتیم خانے کے نام پہ کرے، دعویٰ سینٹر کے نام پہ کرے. آج تو پوری دوڑ لگی ہوئی، مولویوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو چلو جھولا اٹھاؤ نکل پڑو، یہاں مسجد ہم بنوا دیں گے، وہاں مدرسہ ہم بنوا دیں گے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی ہیں اللہ والے جو الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اللہ کے گھر پہ بھی قبضہ جما دیتے ہیں. اتنے جری لوگ ہو گئے ہیں کہ اللہ کے گھر پہ بھی قبضہ جمانے اور ڈاکہ ڈالنے میں لوگوں کو ذرہ برابر بھی عار اور شرم لوگ محسوس نہیں کرتے. کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے ایسے لوگ اللہ کے سامنے؟ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من استعملناہ منکم علی عمل، میں تم میں سے اگر کسی کو کوئی عمل دے کر کے بھیجوں، صدقہ اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجوں، فکتمنا مخیۃ کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ، اگر وہ ایک سوئی بھی چھپا لیتا ہے، جو زکوٰۃ اور صدقہ کی وصولی کے لیے گیا تھا لیکن اس نے ایک سوئی چھپا لی، بغیر پرمیشن کے لے لیا، یہ بھی غلول ہے، خیانت ہے، قیامت کے دن لاد کر لانا پڑے گا. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من استعملناہ منکم علی عمل، اگر میں کسی کو عامل بنا کے بھیجتا ہوں، وصولی کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، فلیاتی بقلیلہ وکثیرہ، تھوڑا وصول ہے یہ زیادہ وصول ہے، لا کر سامنے اس کو حاضر کرے. اتنا وصولی ہوئی ہے، لیجئے. اب نبی فرماتے ہیں فما اوتی منہ اخذا، اگر پھر اس میں سے اس کو بطور مزدوری کے محنتانہ کے کچھ دے دیا جائے تو لے لے، اور اگر روک دیا جائے تو رک جائے، نہ دیا جائے تو نہ لے. اگر کوئی وصولی پہ نکلا ہے، ہدیہ بھی لیتا ہے تو یہ رشوت ہے، ہدیہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ وصولی پہ نکلے اس وقت سیٹھ لوگ آپ کو ہدیہ دینے لگے، نہیں لے سکتے. ابن اللتبیہ نامی ایک شخص تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا وصولی کے لیے. جب مال وصول کے لائے صدقہ زکوٰۃ کا تو کہنے لگے ھذا لکم وھذا اہدی لی، او لوگوں اتنا تمہارا ہے، اتنا مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فحلا جلس فی بیت اخیہ، ارے وہ اپنے باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا، وہیں اس کا ہدیہ لوگ پارسل کر دیتے. جب میں نے اس کو وصولی کے لیے بھیجا تو پھر لوگ اس کو ہدیہ کیوں دینے لگے. گھر میں ہی بیٹھا رہتا تب دیکھتے کہ کون سا ہدیہ مل رہا ہے اس کو. معاملہ اس سے کیا پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، معاملہ بہت سیریس ہے. اگر کوئی یتیموں کے نام پہ، آج کل تو یتیموں کو بھی لوگ نہیں معاف کرتے، یتیموں کا مال جو کھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو اپنے پیٹ میں جہنم کا انگارہ بھرتا ہے. یتیموں کے نام پہ بھی لاتے ہیں لوگ اور ہڑپ کر جاتے ہیں. میرے بھائیوں قیامت کے دن اللہ کو ایسے لوگ کیا منہ دکھائیں گے. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول فرماتے لا الفین احدکم، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں قیامت کے دن یاتی یوم القیامت والا رقبتہ بعیر، قیامت کے دن آئے گا اس کے کندھے پہ ایک اونٹ ہوگا جو اونٹ بلبلا رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا. آدمی کہے گا اللہ کے رسول بچا لیجئے، مدد کیجئے. میں کہوں گا آج میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں دیکھنا نہیں چاہتا. ہمارے نبی کس قدر شفیق اور مہربان تھے، کہتے میں اپنی امت کے لوگوں کو اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا. قیامت کے دن اتنے سارے، جب ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی میرے بھائیوں کتنا برا حال ہوگا، کتنی
फजीहत और जिल्लत और रुसवाई का आलम होगा कि आदमी अपनी गर्दन पे ऊंट लादे है, गाय लादे है, बकरी लादे है और ये जानवर चिल्ला रहे होंगे। मेरे भाइयों बताओ कि उसका भांडा फूट जाएगा कि नहीं? सारे लोग उसको मुंह उठा के देखेंगे कि नहीं? अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे भाइयों, दुनिया की हवस मत पैदा करो, दुनिया की लालच में इस तरह गिरफ्तार ना हो कि तुम अल्लाह के नाम पे लाके उसको हजम कर जाओ, हड़प कर जाओ, खयानत कर जाओ, वरना कयामत के दिन तुम्हें अपनी गर्दन पे लाद कर लाना पड़ेगा। तुम मुझे मदद के लिए पुकारोगे, कहोगे या रसूल अल्लाह इतनी, अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए, मैं दामन झाड़ लूंगा और कहूंगा इन्नी ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शैया, आज मैं कयामत के दिन कुछ भी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फितनों का जमाना है, ईमान बचाना है, फितनों का जमाना है, ईमान बचाना है, अल्लाह को अब अपने रो रो के मनाना है, चोरी मुज़नाकारी रिश्वत व नशाखोरी, हर गांव पे फाहाशी और नाच गाना है, फितनों का जमाना है, ईमान बचाना है, नास दुख बयानी है, ना पास अमानत है, बस झूठ खयानत में मसरूफ जमाना है, ये उर्ब कयामत के फितने बड़े मोहलिक हैं। हालात बड़े नाजुक और पुरखतर हैं मेरे भाइयों, इसलिए कि हम लोग कयामत से बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में दीन ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए दुनिया की हवस और लालच इस कदर आदमी ना पैदा करे कि गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, यतीमों का माल आदमी हड़प कर जाए। मस्जिद, मदरसों, यतीम खानों और दावत सेंटरों के नाम पे आदमी अगर अपनी कमाई और अपनी दुकान चमकाने लगे, मैं तो अक्सर कहता हूँ काम आसान नहीं है। ये जहन्नम की पुष्ट पे चलना है, जहन्नम की पीठ पे कोई आदमी चल रहा है, पुल सिरात पे चल रहा है। कब गिरा? अब गिरा कि तब गिरा। अगर जर्रा बराबर भी बहक गया और उसका दामन नहीं बच सका तो यकीन जानिए जो पुल सिरात पे कांटे लगे हैं ना, वो झपट्टा मार के उसको जहन्नम में होते वो गिरा देंगे। इसलिए काम आसान नहीं है, बहुत पुरखतर जगह है और इस जगह से सलामत गुजर जाना ये बहुत दीदावरों का काम है। बहुत कोई अल्लाह वाला होगा, मुत्तकी परहेजगार होगा तो ही वो बच सकता है, वरना बचना मुश्किल है। ये उर्ब कयामत के फितने बड़े मोहलिक हैं, मुहतात जो हो जाए वो शख्स सयाना है, जो दामन बचा ले जाए वही सयाना है। तो मेरे भाइयों, हराम कमाई की बहुत सारी शक्लें अभी मैंने आपके सामने रखी। आखिरी बात जो मैं रखना चाहता हूँ, जो बीमारी नासूर की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, वो है रिश्वत सतानी का बाजार गर्म है, सूद खोरी का बाजार गर्म है। और आपको पता है सूद लेने वाला या रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों पे लानत आई है। और ऐसे ही सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सब पर अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है। लानत का मतलब होता है अतर्द वल इबाद मिन रहमतिल्लाह। आमतौर पर लानत 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 समझते हैं, ये मलऊन है, ये लानती है। मतलब तो समझ लो तब समझ में आएगा। लान तान का मतलब, लान का मतलब अरबी ज़बान में होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। तो ऐसा शख्स मलऊन है और अल्लाह की लानत है, वो अल्लाह की रहमत से दूर है, जो सूद खाता है, सूद खिलाता है और सूद लिखता है और सूद की गवाही देता है। और इसी तरह ताकि रसूल ने फरमाया दिरहम और रिबा, एक दिरहम सूद अगर आदमी खाता है
वहुव याकुलु दिरहम रिबा याकुलु वहुव यालम, जानबूझ कर एक दिरहम सूद खाता है, अशद्दु मिन 36 ज़िनिया, 36 मर्तबा ज़िनाकारी बदकारी से ज्यादा डेंजर है। और एक रिवायत में फरमाया अर्रिबा 70 बाबा, सूद के 70 दरवाजे हैं, ऐसरुहा मिथलु अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु, सबसे आसान दरवाजा ये है कि नऊज़ बिल्लाह आदमी अपनी माँ के साथ बदकारी करे। और क़यामत के दिन मेरे भाइयों, जो लोग सूद खा खा के अपनी तोड़ें बढ़ाते हैं, क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे सही तौर से, उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिस तरह दुनिया में उनका फिगर बिगड़ जाता है, क़यामत में उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक पैर यहाँ रखेंगे, दूसरा वहाँ रखेंगे, देखने वाला समझेगा ये कोई मजनू है, कोई पागल है, कोई दीवाना है। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे तो इस तरह उठाए जाएंगे जैसे किसी शख्स को शैतान ने छूकर खप्ती बना दिया हो, मजनू पागल और दीवाना बना दिया हो। ये है सूदखोरी। जब अल्लाह के रसूल मेराज में गए, देखा एक आदमी को खून के नहर में बीचों बीच में खड़ा है, हाँ खून की नहर में बीचों बीच में खड़ा है, और किनारे एक फरिश्ता एक आदमी है, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको पत्थर से मारता है, और इतना जोर पत्थर मारता है कि फिर उसको ढकेल के वहीं पहुंचा देता है, बराबर ये सब करता रहता है। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये कौन आदमी है? आपको बताया गया हादा आकिलुर रिबा, ये वो आदमी है जो दुनिया में सूद खाया करता था, इसलिए आज इसको ये सजा मिल रही है। तो मेरे भाइयों, हरामखोरी से जो लोग अपने जिस्म को पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लु जिस्मिन कुल्लु लहमिन नबता मिनस्सुहति फन्नारु औला बिही, हर वो जिस्म, हर वो गोश्त पोस्त जो हराम से पलता बढ़ता है, जहन्नम की आग उसको जलाने की ज्यादा हकदार है, और ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं होती है। अभी मैंने आपको सुनाया, अभी मैंने कहा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो कि तुम आपकी दुआएं कबूल हो जाएं तो हलाल रोजी खाइए। अल्लाह के रसूल ने एक आदमी का जिक्र किया, नक्शा खींचा, लंबा सफर करके आता है, हज के लिए आता है, उम्रे के लिए आता है, खाने काबा का चाहे वो पर्दा ही पकड़ के लिपट जाए, लेकिन अगर कमाई हराम है, रो रो के गिड़गिड़ा के खाने काबा का चाहे पर्दा ही पकड़ के चिमट जाए, और अल्लाह को कहे या रब्बी ओ मेरे परवरदिगार, ओ मेरे परवरदिगार। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो मतअमुहु हराम व मलबसु हराम, उसका पीना हराम, उसका खाना हराम, और गुज़िया बिल हराम, हराम से उसने ग़िज़ा हासिल की, फअन्ना युस्तजाबु लहु, उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है, कैसे कबूल हो सकती है? कितना मुकद्दस सफर करके कोई चला जाए, चाहे वो मक्का मदीना ही क्यों ना चला जाए, और या अल्लाह पुकारे, अगर हराम कमाता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये सारी वईदें हैं और इसके नुकसानात हैं, और क़यामत के दिन ये हराम माल आपके खिलाफ अल्लाह के सामने गवाही देगा। और मैं तो एक चीज भूल गया, शेख ने बताया अभी, हमारे शेख मंसूर साहब ने, आपसे कहीं ज्यादा हमारी बहनें आई, तो पैसा तो कमाते हैं मर्द, इसलिए हमारे मुखातिब मर्द ही हो गए। मैं बहनों के लिए भी कुछ सुना, पैसा आप तो नहीं कमाती हैं, लेकिन एक काम आप करती हैं जिससे आप अपने शौहरों को हराम में मुब्तला करती हैं, हराम कमाने पे उकसाती हैं। अगर ये जुर्म आप करती हैं तो आप बराबर की शरीक होंगे। एक हदीस पढ़ता हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना अव्वला मा हलका बनु इस्राइल, सबसे पहले बनु इस्राइल जो हिलाक हो गए, मालूम है कैसे हुए? औरतों की वजह से हुए। बिअन्ना इमरातल फकीर, गरीब की बीवी, कानत तुकल्लिफुहु मिन अस्सियाबि अव अस्सियाबि मा तुकल्लिफु इमरातुल गनी, गरीब और फकीर की बीवी अपने शौहर से जेवरात और कपड़ों के डिमांड उसी तरह किया करती थी जिस तरह मालदारों की बीवियां करती हैं। बनु इस्राइल हिलाक हो गए, बहुत से असबाब थे बनु इस्राइल के हिलाक होने के, उसमें एक सबब ये भी था कि इनकी बीवियां फैशन परस्ती में बहुत आगे निकल गई थी।
मालदारों की बीवियां ऊपर से नीचे तक जेवरात पहन के लाल पीली होके छम छम करके निकलती थी, तो गरीबों की बीवियां दिल में कुढ़ती थी, तो अपने गरीब शौहरों से कहती थी कि अरे तुम कब कमाओगे फलाना और बप्पा, हाँ पूरी जिंदगियां तो गुजर गई, हाँ वो देखो फला के घर की औरतें कैसा लाल पीली सोने चांदी से बिल्कुल सर से पैर तक अटी रहती हैं, हमारे अरमान कब पूरे होंगे। हाँ बुढ़ापा तो आ गया, अब आदमी सोचता है कि भैया हलाल हराम में पड़ेंगे तो बीवी के अरमान पूरे नहीं होंगे, इसलिए वो डाका डालना शुरू कर देता, माल गसब करना शुरू कर देता, हराम कमाना। तो अगर आप अपने शौहरों को हराम कमाने पे उकसाती है तो आप बराबर की शरीक। मेरी बहनों इंतजार करो, अगर हालात मुश्किल है तो सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो, लेकिन अपने शौहर से कहो शौहर नामदार हमें हराम नहीं चाहिए, हराम से हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह हलाल रोजी से हमारे हालात अच्छा नहीं करता, हराम की हमें जरूरत नहीं है, हम कम में गुजारा कर लेंगे। इसी तरह बनु इसराइल की औरतों की हिलाकत का एक सबब ये भी था, फैशन परस्ती में बहुत आगे निकल गई थी, रस्मों रिवाज फैशन परस्ती, बनाओ सिगार। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बनु इसराइल में 2 लंबी औरतें थी, सही मुस्लिम किताबुल अल्फाज की रिवायत में पढ़ रहा हूँ, और यही हदीस जो भी आपने पढ़ी उसी का आगे यह हिस्सा है। बनु इसराइल में, बस बात खत्म करूंगा ये हदीस सुना के, बनु इसराइल में 2 औरतें थी बड़ी लंबी चढ़ंगी, लंबे कद की, और बनी इसराइल में जिनका कद लंबा होता था जिन औरतों का, उनको बड़ा खूबसूरत माना जाता, हसीनो जमील माना जाता, जिनके कद लंबे होते थे। तो एक औरत थी, एक लड़की थी, उसका कद जो है ना पस्त था, तो वो एहसास कमतरी में रहती थी, मेरा तो कद पस्त है, मुझे कोई घास ही नहीं डालता है, मुझे कोई देखता ही नहीं। और ये 2 लंबी तरंगी जो थी जिधर भी निकल जाती तो सब दीदा फाड़ फाड़ कर उनको देखती। अब वो सोचती रही, एक जमाने तक सोचती रही क्या करूं कि मेरा भी कद लंबा हो जाए। क्या किया उसने लकड़ी का आर्टिफिशियल पैर बनवाया, फत्तखज़त रिजलम मिन खशबिन, आर्टिफिशियल लकड़ी का पैर बनवाया, लकड़ी का पैर बना के अपने पैर में जोड़ा, और सोनार के पास गई, वत्तखज़त खातमम मिन ज़हबिन मुतलक़न मुतबक़न वहशतहु मिन मिस्किन, सोनार के पास जाके एक अंगूठी का डिमांड किया, और पता है जैसा जैसा मैं बताती हूँ वैसा वैसा अंगूठी बनाओ। अब सोनार से उसने अंगूठी कैसा बनाया, सोचो टेक्नोलॉजी उस जमाने में भी कैसी थी। सोनार ने जो अंगूठी बनाई, अंदर से यानी पीछे से उसके अंदर एक छोटा सा ढकना बनाया, उसमें उम्दा परफ्यूम और खुशबू भर के वो औरत ने उसको पहना, उसमें परफ्यूम भरी, लकड़ी का पैर पहना, और 2 लंबी औरतों के बीच में होकर चलने लगी। तो सारे लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे कि बनु इसराइल में 2 ही लंबी थी, एक तीसरी कहां से आ गई। तो और बाज़ रिवायतों में किसी मर्द को भेजा उनका पीछा करने के लिए। बनु इसराइल ना ताक झांक बहुत करते थे, औरतों के पीछे बहुत पड़ते। तो एक आदमी गया पता लगाने कि ये तीसरी कौन है, तो नहीं पहचान पाया, वो समझा कहीं बाहर से आई है, मेहमान वहमान आई होगी। और एक रिवायत में ये भी है कि वो औरत जब मर्दों के पास से गुजरती तो अपना हाथ ऐसे करती तो ढकना खुल जाता, उससे खुशबू निकलती, तो मर्दों की नाक में जब खुशबू पहुंचती तो हर कोई देखने के लिए मजबूर है। इसीलिए कहा गया औरत खुशबू लगा के घर से न निकले, वो खुशबू जो दूर तक फूटती हो। तो बनाव सिगार के नतीजे में इसीलिए हजरत मुआविया जब हज में आए और मदीना आए, और मदीने के मिंबर पे खड़े होकर हजरत मुआविया ने कहा, ऐना उलमाउकुम या अहल मदीना, अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ गए? अरे ये तुम्हारी औरतें बाल में नकली बाल जोड़ने लगी है, और यही काम जब बनु इसराइल की औरतों ने किया तो बनु इसराइल हलाक हो गए, और यही काम तुम्हारी औरतें कर रही है, तुम भी ना हिलाको बर्बाद हो जाओ। और देख लीजिए फैशन परस्ती कहाँ जा रही है। लेकिन वो मेरी बहनों आप मुखातिब नहीं हो, इसीलिए नबी ने फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचो, औरतों से बचो। फइन्न अव्वल फितनते बनी इसराइल कानत फिन निसा, बनी इसराइल का पहला फितना औरत के बारे में। लेकिन मेरी बहनों हर औरत फितना नहीं होती है। जो तुम शर्मो आया कि चादर में लिपट के यहाँ आई हो इस्लाहुल उलूम में, और बराबर तुम आती रहती हो, जुमा में भी आती हो, दर्स में भी आती हो, तुम फितना नहीं हो। तुम जैसी औरतें जो नेक होती हैं
हैं, सालिहा होती हैं, वो फितना नहीं है। फितना तो वो होती हैं जो बनाव सिगार करके, अपने हुस्न जमाल की आराइश करके और दूसरे मर्दों को रिझाती हैं, वो ऐसी औरतें फितना होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हराम कमाई पे आप भी अपने शौहरों को ना उकसाएं, और अगर कमाई नहीं हो पा रही है तो आप सब्र करें और हालात की बेहतरी के लिए अल्लाह से दुआ करें। आप रात में उठ के तहज्जुद में अल्लाह से रोएं गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह आपके हालात अच्छे कर दें। आप भी पहनिए हो रही है, आप भी पहनिए हो रही है दूसरे मालदार औरतों की बीवियों की तरह। तो मैं समझता हूँ कि वक्त भी ख़त्म हुआ और इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह से दुआ करूँगा कि मौला जब तक हम दुनिया में रहें, अल्लाह तो हलाल कमाई से हमें अपने बच्चों की परवरिश करने की अल्लाह हमें तौफीक बख्शे। हराम से हम अपने दामन को बचाएं। सूदखोरी, रिश्वत सतानी, खयानत, गसाब, चोरी, डाका, इन सब जराइम से अल्लाह हमें, इन बीमारियों से अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह हलाल तरीके से हमें कमाने, अल्लाह की राहों में खर्च करने, अपने बाल बच्चों पे खर्च करने की अल्लाह हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व तौफीक अल्लाह सुब्हानहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहे।